Okay, so let's move on to the next type, students. That is type number 4. ठीक है, टाइप 4 का हेडिंग लिख लो आप, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स by using adjoint method. Now last time we have done inverse of a square matrix, but we have done inverse of a square matrix by elementary transformation, that is row and column transformation से हमने सीखा है. अभी आज हमें क्या नया सीखना है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड सीखना है. ठीक है, you can underline this word adjoint method. Now before we move on to the problems, obviously there are some basic terminologies that we require. Now recollect, in standard 11 in theory lectures we have done minors and cofactors. Determinant के minors and cofactors निकालना हमने सीखा था 11th standard में. Now that procedure is going to be required. तो कुछ basic terminologies है वो आप note down कर लो. Okay, write down definition of minors, or what do you mean by minors. ऐसा लिख लो, definition of minors. ठीक है, रिकलेक्ट 11th स्टैंडर्ड में हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखा था ऑफ अ डिटरमिनेंट. ओके, राइट डाउन, लिखो आप माइनर ऑफ एन एलिमेंट. राइट डाउन माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, minor of an element Aij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column. Okay, recollect, we have done it in standard 11, minors and cofactors वाला part. The minor of an element Aij, minor किसका फाइंड होता है स्टूडेंट? एलिमेंट का. जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होता है उसका माइनर फाइंड होता है. ओके, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is the determinant obtained by deleting the ith row and the jth column. ठीक है, minor is denoted by, अभी लिख लो आप, minor is denoted by notation. Minor is denoted by the notation, capital M stands for minor, MIJ. ठीक है, डोंट वरी, जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे ना ऑटोमेटिकली माइनस को फैक्टर्स वाला पार्ट आ ही जाएगा उसमें. ठीक है ना, ये माइनस का डेफिनेशन है, प्लीज नोट डाउन. ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कोफैक्टर्स का. हाउ डू वी डिफाइन अ कोफैक्टर और हाउ डू वी फाइंड आउट अ कोफैक्टर. ओके, राइट डाउन, इसमें कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij लिख लो आप, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is given by एक फॉर्मूला है कोफैक्टर फॉर्म करने का. तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो. डाउन Aij, कैपिटल Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij. Please try to recollect this. We have done it in standard 11. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा ये चीज. Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij. Now Aij is the notation for the cofactors. Now some reference book
इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नोटेशन AIJ, कैपिटल ए के जगह पे कैपिटल सी भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, बट आवर टेक्स्ट बुक इज फॉलोइंग कैपिटल ए नोटेशन, so let us go with the capital A notation. Capital A notation cofactors के लिए होता है. Okay, so cofactor is given in this manner. Okay, now next you write down. Next चीज पे जाते हैं, definition of a cofactor matrix. Definition of a cofactor matrix. cofactor matrix क्या होता है वो हम लिखेंगे. Okay, write down. When the cofactors, ऐसा लिखो आप, when the cofactors of the elements, when the cofactors of the elements, when the cofactors of the elements are arranged in form of a matrix, in form of a matrix. When the cofactors of the elements are arranged in form of a matrix, in form of a matrix, and kept at their corresponding places, and kept at their corresponding places is called as a cofactor matrix. Is called as a cofactor matrix. Okay, don't worry, I'll explain with the help of an example. It's very simple to understand. जो cofactors हम निकालते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पहले माइनर्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है. Okay, so when a cofactor of the elements are arranged in form of a matrix at their corresponding places is called as an cofactor matrix. ठीक है, अभी लिखो adjoint of a matrix. Next लिखो आप adjoint of a matrix. These are all basic terminologies. This is something new. ठीक है ना, cofactor matrix and adjoint of a matrix, ये नई चीज हम सीख रहे हैं. Minors and cofactors we already knew it in standard 11. ठीक है, adjoint of a matrix, ये definition लिखेंगे अभी हम. Okay, write down a matrix obtained. Write down a matrix obtained by taking the transpose, the matrix obtained by taking the transpose, by taking the transpose of a cofactor matrix. A matrix obtained by taking the transpose of a cofactor matrix is called as adjoint of a matrix. Is called as adjoint of a matrix. Very simple to understand. A matrix that is obtained by taking the transpose. ये word आप underline कर लो. Transpose
ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसको एक नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज एन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस कम्स इन एन ऑर्डर, पहले माइनर्स आएगा, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। Okay, so please note down these definitions. Okay, so after seeing this definition, minus, cofactors, cofactor matrix and adjoint of a matrix, student, now let us learn how to find out adjoint of a matrix. इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पे पहले बाद में आएंगे हम, पहले हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, सो लेट अस डू अ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया तो इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। Okay, just give me 30 seconds more. Okay, now write down, heading लिख लो आप, this is unit number 9, unit 9 कर रहे हैं हम। Okay, now what you do is, ये type 4, इसको हम इनवर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम इनवर्स नहीं फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ऐसा आप कर दो, टाइप 4 ही रहने दो, लेट इट रिमेन टाइप 4 ओनली, सिर्फ हेडिंग हटा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट अस डू यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 करेंगे, विच इज अवर क्लास वर्क सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 लिख लो आप। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 सेज, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसा लिखो, फाइंड द एडजॉइंट of the matrix, okay, let us write down the given matrix. Matrix is given as 2 0 1 in the first row, 0 -1 and 2 in the second row, and 1 0 1 in the third row. Okay, please note down this question. Finding the adjoint of a matrix. Now, if this question is asked in exam, it will carry 3 marks. Okay, so chalo, write down solution for this problem. Okay, now what we do, students, first of all, we first write down, we consider the matrix as A. So likho, consider the given matrix as A. So consider A is equal to, likho, 2 0 1 in the first row, 0 -1 and 2 in the second row, and 1 0 1 in the third row. Let's write down this is matrix A. Okay, what we want to find out, students, we want to find out adjoint of this matrix. Okay, now what we do is, before we find out the adjoint of a matrix, we need to find out minors and the cofactors. Okay, so what you can do is, minors and cofactors are found out for the determinant के minors और cofactors निकलते हैं. So what we do, we convert this to determinant. Determinant में इसको convert कर लेते हैं, and let us write down these matrix entries in form of a determinant. तो लिखो 2 0 1 in the first row, 0 -1 and 2 in the second row, and 1 0 1 in the third row. We have converted the matrix to a form of a determinant because minors and cofactors determinant के elements के होते हैं. Okay,
Now what you do is you divide your page into two halves. You divide your page into two halves. On the left half you write down minors and on the right half you write down cofactors. Okay, this procedure we have done it in standard 11. आप आपके पेज को डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड पे आप लिखो माइनर एंड राइट हैंड साइड पे आप लिखो कोफैक्टर्स. Okay, we'll go step wise. Since it is first example, we'll go step wise. Minors and cofactors. Divide your page into two halves. Okay, now recollect. एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज डू हैव अ लुक. अगर मैट्रिक्स ए है, रिकलेक्ट डेफिनेशन. मैट्रिक्स ए कैसे होता है? A11, A12, A13, राइट? A21, A22, A23, 3x3 वाले की बात कर रहा हूँ. A31, A32 एंड A33. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एलिमेंट्स के फाइंड होते हैं. तो A11 का माइनर निकालना है पहले. वी वांट टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ A11. तो माइनर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय द नोटेशन M11. रीड डाउन फर्स्ट माइनर. First minor, how do we find out M11? Delete the first row, first column. 1 1. Delete the first row, first column, and whatever entries are left out after deleting the first row, first column, write down in form of a determinant. So what entries are left out? -1, 2, 0, and 1. First row, first column delete करना है माइनर फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद these 4 entries are remaining, write down in form of a determinant. अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे. So what is the value of this determinant? So it's -1. So M11 minor M11 is -1. ठीक है, recollect we have done it in standard 11 students. Minors वाला part and cofactors वाला part also. Now next we move on to M12. माइनर M12 निकालना है. पहले सब माइनर्स निकाल लेते हैं, फिर सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स का ट्रिक है, ठीक है. अभी कोफैक्टर्स, हाउ डू वी फाइंड आउट कोफैक्टर, सॉरी माइनर M12, कोफैक्टर्स बाद में फाइंड करेंगे. माइनर M12 पे आते हैं. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद दीज आर द 4 एंट्रीज रिमेनिंग, 0 2 and 1 1. We will find out the value of this determinant. This into this minus this into this. तो ये वैल्यू -2 आएगा. ये M12 हो गया. ये इसका माइनर है. एलिमेंट्स के माइनर निकलते हैं. नेक्स्ट माइनर आएगा M13. M13 क्या करना है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है. तो व्हाट एंट्रीज आर लेफ्ट आउट? 0 -1 and 1 0. Okay, close the determinant symbol. First row third column delete किया. Okay, now let us find out the value of this determinant. This into this minus this into this, तो ये value 1 आएगा. Okay, तो ये 3 माइनर्स निकल गए. अभी फिर ये 3 माइनर्स और फिर ये 3 माइनर्स निकालने. टोटल 9 माइनर्स वी हैव टू फाइंड आउट. जितने एलिमेंट्स है सबके माइनर्स और सबके कोफैक्टर्स निकलेंगे. Let us first find out all the minors. Okay, so I just rub off this arrangement. This we already know. Okay, chalo now let's move ahead to find out the remaining minors. देखो. Okay, now let's move on to the next minor, M21. लेफ्ट साइड पे माइनर्स निकालेंगे हम. फिर हम निकालेंगे M21. Then we'll find out M22 and then we'll find out M23. ठीक है, then we'll find out M31, then we'll find out M32 and then finally we need to find out M33. Okay, so let's initially concentrate on M21. M21 ठीक है. अब सब में डिटर्मिनेंट का सिंबल तो आएगा ही. डिटर्मिनेंट सिंबल इज मस्ट. तो M21 के लिए क्या करने का? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो आप. delete the second row first column. So what is left out? 0 1 0 1. Check out 0 1 0 1. So what is the value of the determinant? 0.
जो रो और कॉलम उसको अटैच्ड होता है ना, वो डिलीट करने का, जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट होता है वो डिलीट। ओके, नेक्स्ट M22 delete the second row second column. We're done. What entries will be left out? Second row second column delete करेंगे तो 2111 2111. What is the value of the determinant? So it's 1. ठीक है, चलो now tell me the entries in M23. M23 में क्या बचेगा? In first row 20 and second row 11 10 10. Correct, very good. First row में 20, second row में 10. ठीक है, this is how we remember the knowledge that we have done in standard 11. इससे काम आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो 2010 बच गया। नाउ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो वो 0 ही आने वाला है। अब वैसे ही आप M31, M32 और M33 निकालो। चलो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। Done, sir. डन, वेरी गुड। ओके, M31, चलो लेट अस डू इट। M31, तो अभी क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो 0 1 -1 2, 0 1 -1 2, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 1। अभी M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2102 2102, so this value is 4 and 33 minor M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचेगा 200 -1 and value of this determinant is -2. प्लीज चेक। तो ये सारे 9 के 9 माइनर्स निकल गए, काउंट देम, दे आर टोटल 9 इन नंबर्स। जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब के माइनर्स निकलेंगे। Please remember, this will help us to find out inverse, inverse by adjoint method. ठीक है, now let us find out the cofactors. अभी हम cofactors लिखते हैं। ओके, तो माइनर A11 माइनर सॉरी M11 माइनर M11 का जो कोफैक्टर निकलेगा, that will be denoted by the notation capital A11. Okay, now see what does the definition says. कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है, Aij, I'll just write down over here, Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij. This is what the cofactor का definition says. But recollect, in 11th standard I have told you the trick. We will do it by the trick. हम प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, वापस एक बार ध्यान से देखना। आप 11th में मैंने आपको समझाया है, but those who are new students, please pay attention once again over here. Now A11, अब देखो 1 + 1, concentrate on this number, 1 + 1 2, 2 इवन नंबर है, तो आपको क्या याद रखना है, जहां पे ऐड करके इवन नंबर आता है, the number remains the same. Like for example, just have a look, A11 1 + 1 इवन होता है, तो ये -1 ही रहेगा, it will remain same. The cofactor A11 is -1. जो माइनर है वही कोफैक्टर का वैल्यू है। नाउ प्लीज पे अटेंशन ना। अभी नेक्स्ट में आता हूं माइनर A12 पे, सॉरी कोफैक्टर, माइनर M12 का कोफैक्टर A12 निकालना है। नाउ 1 2 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, ये -2 है ना, ये +2 हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जहां पे ऐड करके इवन नंबर आता है, जहां पे ऐड करके इवन नंबर आता है वहां पे नंबर इज सेम, वहां पे नंबर इज सेम। और जहां पे ऐड करके ऑड आता है, 1 + 2 3, 3 ऑड है, जहां पे ऑड आता है द नंबर चेंजेस इन साइन, द नंबर चेंजेस इन साइन। ओके, तो चलो लेट अस क्विकली फाइंड आउट नेक्स्ट वन, पे अटेंशन। अभी आएगा A13, अभी 1 + 3 4 होता है, तो 4 होता है, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पे, चेक आउट ओवर हियर। नेक्स्ट कोफैक्टर इज A21, 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है,
बट ऑड नंबर है तो 0 पे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं A22 पे। कोफैक्टर A22, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 एक इवन नंबर है, so this one return as it is over here. Next A23, 2 + 3 5, 5 एक ऑड नंबर है पर वो 0 पे इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस माइनस साइन 0 पे इफेक्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू A31, 31, 3 + 1, 3 + 1 4 होता है, 4 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो 1 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट वी फाइंड आउट A32, ठीक है, 3 + 2, 3 + 2 5, 5 एक ऑड नंबर है, सिंस 5 इज एन ऑड नंबर स्टूडेंट, ये +4 का -4 हो जाएगा। एंड फाइनली A33, 3 + 3 6, 6 is an even number. Since it is an even number, this number will remain same in the sign. -2 का -2 ही रहेगा। I hope I'm clear with this. Okay, please note down. तो आप क्या करो, ये कोफैक्टर्स का डेफिनेशन है वो इसके ऊपर लिख लो। नाउ आई डोंट हैव स्पेस, ये जो कोफैक्टर का डेफिनेशन है ना, ये आप कोफैक्टर के ऊपर लिख लो। जस्ट नोट डाउन ओवर हियर, यहाँ पे आप लिख लो ऊपर फॉर योर रेफरेंस। तो इफ द एग्जामिनर आस्क कि कैसे आया, तो फिर सर को बोलने का सर आई हैव यूज्ड दिस डेफिनेशन। एक्चुअली हमने ट्रिक यूज किया है। देखो, सेम इन साइन, चेंज इन साइन, सेम इन साइन, चेंज इन साइन। अब 0 है तो 0 को तो चेंज से फर्क नहीं पड़ता है। सेम, चेंज, सेम इन साइन, चेंज इन साइन, सेम इन साइन, ऐसा है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर इफ इट्स अ 3 × 3 मैट्रिक्स। अगर वो 3 × 3 के कोफैक्टर्स आप निकाल रहे हो तो सेम, चेंज, सेम, चेंज, सेम, चेंज, सेम, चेंज, ऐसा याद रखना है। चेंज मीन्स ओनली इट चेंजेस इन साइन, सिर्फ साइन में चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो कैसे याद रखना है, इफ इट इज एन इवन नंबर, 1 + 1 2 है, अगर इवन नंबर है तो सेम रहेगा, साइन में भी नंबर तो वही रहेगा। इफ इट इज ऑड तो इट चेंजेस इन साइन, changes in sign. What changes in sign? Number changes in sign. जैसे ये -2 था तो ये +2 हो गया। I hope everyone understood this. Yes, sir. Okay, very good. Very correct. This is what we have done it in standard 11th also. Okay, now let's move ahead. I hope you have finished writing these cofactors वाला part. ठीक है, now I need space students, so let's write down. अच्छा, now what we are supposed to do, ये जो cofactors मिले, these cofactors that we have obtained, we have to arrange these cofactors in form of a matrix. ठीक है, now आप लिखो, now we are supposed to write down the cofactor matrix. Cofactor matrix. अच्छा, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं कैपिटल बी। कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं कैपिटल बी। ये जो मैट्रिक्स था ओरिजिनल, उसको हमने नाम दिया था कैपिटल ए। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल बी। ओके, नाउ हाउ डू वी राइट डाउन कोफैक्टर मैट्रिक्स? राइट डाउन कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी, देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, and then in the last row A31, A32 and A33। मतलब जो कोफैक्टर्स मिले ना, उसको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना है। That's why it is called as a cofactor matrix. Means जो कोफैक्टर्स मिले उसको मैट्रिक्स में अरेंज करना है। Now let us arrange these cofactors in form of a matrix at their respective places. Corresponding places पे rearrange करना है उसको। Okay? तो चलो write down -1 2 1 याद रखना आप, ठीक है? I just need to rub this off. Okay, so write down therefore
capital B is equal to A11 is what? -1. A11 देखो -1 है. A12 was 2. A13 was 1. I have rubbed it off, but you can see in your notebook. -1 2 1 बराबर लिखा है मैंने. Yes. Check the cofactors. Have you written this? A11, A12, A13. First row हो गया. अभी देखो क्या लिखना है. A21, A21. What is A21? A21 is 0. A22 is 1. A23 is 0. ये हो गया हमारा second row. A31 is 1. A32 is -4 and A33 is -2. So this matrix that we have obtained is called as a cofactor matrix. तो जो cofactors के वैल्यू है, जब हम उसको मैट्रिक्स में लिखते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसको एक नाम दिया गया है कोफैक्टर मैट्रिक्स. अच्छा, नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, अभी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज. पढ़ो आप डेफिनेशन. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसका ट्रांसपोज लेना है? बी का ट्रांसपोज लेना है. अब बी ट्रांसपोज को एक उसने नाम दिया है एडजॉइंट ऑफ ए. अच्छा, ये स्मॉल लिख लेता हूं. एडजॉइंट ऑफ ए. लेट्स राइट डाउन स्मॉल ए इन द बिगिनिंग. एडजॉइंट ऑफ ए. बी ट्रांसपोज को एक नाम दिया है. किसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं? मैट्रिक्स ए का. वी आर फाइंडिंग आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट बी का ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट बी का ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, so row changes to the column. So first row becomes the first column, second row becomes the second column, and third row becomes the third column. Okay, third row becomes the third column. So ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला ना फाइनली, this matrix that I have obtained is called as an adjoint of matrix A. ठीक है. तो वी हैव सीन डेफिनेशंस इन दैट प्रॉपर ऑर्डर. पहले माइनस का डेफिनेशन देखा, फिर कोफैक्टर्स का, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख के दिया, एंड देन आई हैव गिवन यू द एडजॉइंट ऑफ ए का. ठीक है. तो फर्स्ट वी हैव फाउंड आउट ऑल द माइनस, वी हैव फाउंड आउट ऑल द कोफैक्टर्स, वी हैव अरेंज्ड द कोफैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, and then we have found out the transpose that gives us adjoint of A. That's it. Problem is over. Please note down.